Good morning, students. I'm RK. Today I am going to teach you a very popular and important lesson, the Ganga, written by Pandit Jawaharlal Nehru. So, students, let's know a little about Pandit Jawaharlal Nehru. He was born on 14 November 1889 at Allahabad. His father's name was Motilal Nehru, who was a barrister as well as a famous political leader of his time. His mother's name was Swarup Rani. So, students, after achieving his elementary education, he was sent to a famous English public school. Then he entered Trinity College, Cambridge, and graduated from Cambridge. And then he trained himself as a barrister from Inner Temple. And after returning to India, he joined Indian National Congress and he emerged as an eminent political leader of the Indian National Movement. And after independence, he became the first Prime Minister of India. In this way, he remained a central figure in the political history of our country before and after of the independence. He is also known as Panditji just due to his root with Kashmiri Pandit community, while Indian children knew him as Chacha Nehru because he was very popular among the children and he loved the children very much. So his birth date 14 November is celebrated as Children's Day in our country. And he was died on 27 May 1964 in New Delhi. So students, let's know uh, his important books as Discovery of India, Glimpse of World History, Soviet Russia, National Flag, etc. And now about this lesson. And this lesson is an extract from the will and testament of Pandit Jawaharlal Nehru. As we know that he loved his country and countrymen with wholeheartedly, and he wanted to identify himself completely with them. And his will and testament bears a witness to this great desire of his, and he desired that a handful of his ashes should be thrown into the Ganga and Jamuna at Allahabad, and a major portion of this ashes should be carried high up into the air in an aeroplane and should be scattered from that height over the field of India. Students, Pandit Jawaharlal Nehru discarded much of the past customs and traditions that constrained, bound, and divided her people and prevented their free development. So, student, this was the brief summary of this lesson, and now read the text. I have received so much love and affection. आई हैव रिसीव्ड मुझे मिला है सो मच इतना अधिक लव एंड अफेक्शन मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है फ्रॉम इंडियन पीपल भारतीय लोगों से मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई कैन दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट स्मॉल फ्रैक्शन एक अंश मात्र भी छोटा सा अंश भी ऑफ इट इसका कैन रीपे नहीं कर सकता हूँ बदला नहीं कर सकता हूँ मीन्स कहने का ये है कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर दूँ उनके लिए लेकिन मैं उसका अंश मात्र भी उस प्रेम और स्नेह का लौटा नहीं सकता हूँ जो मुझे भारतीय लोगों से मिला है एंड इंडीड और वास्तव में इंडीड मीन्स वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट कोई बदला हो भी नहीं सकता ऑफ सो प्रेसियस अ थिंग इतनी मूल्यवान वस्तु एज अफेक्शन और वास्तव में प्रेम जैसी मूल्यवान वस्तु का कोई बदला हो भी नहीं सकता मैनी हैव बीन एडमायर्ड बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई है सम हैव बीन रेवर्ड और कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल भारतीय लोगों के सभी वर्गों का प्रेम और स्नेह हैज़ कम टू मी मुझे मिला है हैज़ कम टू मी मुझे मिला है इन सच एबिंडेंट मीज़र इतना अधिक पर्याप्त मात्रा में एबिंडेंट पर्याप्त मीज़र मात्रा में इतनी अधिक मात्रा में मिला है दैट कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ आई कैन ओनली एक्सप्रेस मैं तो सिर्फ द होप आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप मैं केवल बस ये उम्मीद ही व्यक्त कर सकता हूँ दैट कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव कि मैं अपने बाकी के शेष दिनों में यानी मैं अपने बचे हुए वर्षों में दिनों में जब तक मैं जीवित रहूँगा आई शैल नॉट बी अनवर्थी मैं अयोग्य नहीं रहूँगा ऑफ माई पीपल अपने लोगों के मैं अपने लोगों के प्रति अयोग्य नहीं रहूँगा एंड देयर अफेक्शन उनके प्रेम का के अयोग्य नहीं रहूँगा टू माई इनएमोरेबल मीन्स होता है असंख्य नंबरलेस कॉमरेड्स सहयोगियों का एंड कलीग्स साथियों का आई ओ
ऋणी हूँ इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी ग्रेटिट्यूड कहते हैं आभार, डेप्थ मीन्स ऋण, डीपर अत्यधिक, मैं उनका अत्यधिक आभारी हूँ। यानी मैं अपने सहयोगियों और साथियों का, मैं अपने असंख्य सहयोगियों और साथियों का अत्यधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन, हम रहे हैं, जॉइंट पार्टनर रहे हैं, संयुक्त भागीदार रहे हैं, इन ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग में, मतलब महान कार्यों में, बड़े मतलब महान कार्यों में हम संयुक्त भागीदार रहे हैं। एंड हैव शेयर, हमने शेयर किया है, ठीक है। द ट्रिम्स को, ट्रिम्स मतलब जीत को, एंड सोरोज दुख को, विच इनवाइटेबली अकम्पनी देव, जो भी इनवाइटेबली अनिवार्य रूप से उस सब के साथ में आया था, साथ में मिला था या उन सब से जुड़ा हुआ था, उस सुख और दुख को, उस जय और मतलब जीत को और दुखों को भी हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, सहन भी किया है। अब कह रहा कि व्हेन आई डाई, जब मैं मर जाऊं, यानी जब मेरी मृत्यु हो, आई शुड लाइक, मैं चाहता हूं कि माई बॉडी, मेरे शरीर को, टू बी क्रीमेटेड, मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई, यदि मेरी डेथ हो इन ए फॉरेन कंट्री, विदेश में, यदि मेरी डेथ विदेश में हो, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वहीं जला दिया जाए। एंड माई एसेस, मेरी अस्थियों को, सेंट टू इलाहाबाद, उन्हें इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों की मुट्ठी भर राख, शुड बी थ्रोन, प्रवाहित कर दी जाए, इन द गंगा, गंगा में। एंड द मेजर पोर्सन ऑफ दैम, उनके एक बड़े हिस्से को डिस्पोज किया जाए, निपटाया जाए, ऑफ डिस्पोज ऑफ, निपटाया जाए, इन द मैनर, उस तरीके से, इंडिकेटेड बिलो, जैसा नीचे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों के किसी भी हिस्से को, शुड बी रिटेन, उसे रिटेन ना किया जाए, उसे बचा कर ना रखा जाए, और प्रिजर्व, सुरक्षित ना रखा जाए। माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर राख, थ्रोन कर दी जाए, प्रवाहित कर दी जाए, इन द गंगा, गंगा में। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, रिलीजियस धार्मिक सिग्निफिकेंस महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा संबंध है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, आई हैव नो रिलीजियस, मेरी कोई धार्मिक सेंटिमेंट भी नहीं है, भावना भी नहीं है, इन द मैटर, इस मामले में, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच, मैं जुड़ा रहा हूँ, टू द गंगा, गंगा से जुड़ा रहा हूँ, एंड द जमुना रिवर, जमुना, गंगा और जमुना नदियों से मैं जुड़ा रहा हूँ, इन इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ, एवर सिंस माई चाइल्डहुड, यानी मैं अपने बचपन से इलाहाबाद में गंगा और जमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसा कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, तो दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो ये अटैचमेंट भी बड़ा हो गया है, मतलब ये लगाव भी बढ़ गया है। आई हैव वॉच, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके परिवर्तित स्वरूप को देखा है, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे ऋतु बदलती थी, मतलब ऋतुओं के बदलने पर उनके परिवर्तित होते हुए स्वरूप को भी मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री, और अक्सर मैंने उस इतिहास के विषय में भी सोचा है। हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और अक्सर उस इतिहास के विषय में भी सोचा है। मिथ, पौराणिक कथाओं के बारे में, ट्रेडिशंस, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, गीतों के बारे में, गीत, एंड द स्टोरी, उस, और अक्सर मैंने उस इतिहास, पौराणिक कथा, परंपराएं, गीत और कहानियों के विषय में भी सोचा है। दैट हैव बिकम अटैच, जो जुड़ी हुई हैं, टू दैम, उनसे, थ्रू द लॉन्ग एज, लंबे समय से उनसे जुड़ी हुई हैं, एंड बिकम, बनी हुई हैं, द पार्ट ऑफ दिस फ्लोइंग वाटर, और उसके बहते हुए जल का हिस्सा बनी हुई हैं। एंड बिकम मतलब बन गई हैं, पार्ट हिस्सा बन गई हैं, ऑफ द फ्लोइंग वाटर, उसके बहते हुए जल का हिस्सा बन गई है। गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलव्ड ऑफ आवर पीपल, मतलब स्पेशली मतलब विशेषकर गंगा भारत के लोगों की प्रिय नदी है। स्पेशली विशेषकर गंगा भारत की नदी है, बिलव्ड मतलब प्रिय है, ऑफ आवर पीपल, गंगा भारत के लोगों की सबसे प्रिय नदी है। राउंड विच, जिसके चारों ओर, आर इंटरविन मतलब गुथे हुए हैं, हर रेस गुथे हुए हैं, हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जातीय यादें, हर हॉप्स, उसकी आशाएं, एंड फियर्स, शंकाएं, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्स, उसकी जीत के गीत, हर विक्ट्रीज, उसकी जय, एंड हर डिफीट्स, उसकी पराजय, इन सब चीज़ों की यादें उससे जुड़ी हुई हैं। सो सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सी हैज़ बीन, वो रही है, ए सिंबल में से एक प्रतीक रही है, ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, भारत की युगों पुरानी कल्चर में, संस्कृति, एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती रही है। एवर फ्लोइंग मतलब हमेशा परिवर्तित होती हुई।
एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रही है, एंड येट एवर द सेम गंगा, फिर भी वैसी ही है गंगा। सी रिमाइंड्स वो याद दिलाती है, सी रिमाइंड्स वो याद दिलाती है, मी मीन्स मुझे, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है, एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, हिमालय की गहरी घाटियों की याद दिलाती है, विच आई हैव लव्ड, जिसे मैंने लव किया है, सो मच, इतना अधिक प्रेम किया है, एंड ऑफ द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स बिलो, और नीचे के उन समृद्ध और विशाल मैदानों की याद दिलाती है, वेयर माई लाइफ, जहाँ मेरे जीवन को एंड वर्क को हैव बीन कास्ट, ढाला गया है, यानी जहाँ मेरा जीवन और कार्य को शेप मिला है, उसे आकार मिला है, वो ढले हैं। नेक्स्ट, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, सूर्य की रोशनी में प्रातःकाल गंगा मुस्कुराती हुई और नाचती हुई प्रतीत होती है। एंड डार्क, अंधकारमयी, डार्क, ग्लूमी, उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती है, एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे ही शाम होती है। एंड नैरो, एक पतली, स्लो, मंद गति से चलने वाली, एक ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, सर्दियों में एक पतली, धीमी गति से बहने वाली और एक शोभनीय धारा बन जाती है। एंड ए वास्ट, एक विशाल, रॉरिंग, गरजती हुई वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दिनों में, ब्रॉड बोसम्ड, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र के जैसी चौड़े वक्ष स्थल वाली, एंड विद समथिंग, और कुछ कुछ ऑफ दैट सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ कुछ समुद्र की नष्ट करने वाली शक्ति लिए हुए, मानसून के दिनों में एक विशाल गरजती हुई वस्तु बन जाती है। द गंगा हैज़ बीन, गंगा रही है, टू मी, मेरे लिए, ए सिंबल, एक प्रतीक रही है, एंड द मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत के अतीत की एक याद, मेमोरी रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, जो वर्तमान में भी बह रही है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और जो भविष्य के उस महान सागर की ओर बहती जा रही है। एंड दो, यद्यपि, आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन, पास्ट की बहुत सी ट्रेडिशन मीन्स परंपराओं को त्याग दिया है, डिस्कार्ड मीन्स त्याग दिया है, एंड कस्टम्स, रीति रिवाजों को, एंड एम एनेक्शियस, और अब मैं एनेक्शियस हूँ, उत्सुक हूँ, चाहता हूँ, दैट कि इंडिया शुड रिड हर सेल्फ, कि भारत भी छुटकारा पा ले, मुक्त हो जाए, अपने आप को मुक्त कर ले, ऑफ ऑल सैकल्स, उन सभी बेड़ियों से, दैट बाइंड, जो बांध के रखती हैं, एंड कंस्टेंट हर, और उसे नियंत्रित करती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों में फूट डालती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम, और उसमें से बहुत बड़ी संख्या का दमन करती हैं, उन्हें दबाती हैं, दबाती कुचलती हैं, दमन करती हैं। द प्रिवेंट ऑफ फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, बॉडी और स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र डेवलपमेंट को रोकती हैं, प्रिवेंट मतलब रोकती हैं, फ्री स्वतंत्र, डेवलपमेंट विकास को रोकती हैं, और बॉडी एंड स्पिरिट, शरीर और आत्मा के स्वतंत्र विकास को रोकती हैं। दो यद्यपि, आई शीक ऑल दिस, मैं ये सब चाहता हूँ, यट, फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, मैं अपने आप को पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं उस अतीत से पूरी तरह अपने आप को अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, आई एम प्राउड ऑफ, मुझे गर्व है, दैट, उस महान विरासत पर, इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है, दैट हैज़ बीन, जो रही है, एंड इज़, जो है, एंड आवर्स, हमारी, जो हमारी रही है और है, ठीक है, एंड इज़ आवर्स, एंड आई एम कॉन्शियस, मैं बहुत कॉन्शियस हूँ, एकदम सचेत हूँ, दैट कि आई टू, मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की भांति, एम ए लिंक, एक लिंक हूँ, मीन्स एक कड़ी हूँ, इन द अनब्रोकन चेन, उस कभी ना टूटने वाली, उस न टूटने वाली चेन, जंजीर में मैं भी एक कड़ी हूँ, लिंक हूँ, विच गोज़ बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास के प्रारंभ तक जाती है, इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के अति प्राचीन, इमेमोरियल अति प्राचीन, अतीत के इतिहास के प्रारंभ तक जो चेन जाती है, मैं भी उस चेन में एक कड़ी हूँ। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, उस चेन को मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि, आई ट्रीजर इट, मैं इसे बिल्कुल संजो के सुरक्षित रखता हूँ, एंड सीक इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम इट, इससे, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, एज मीन्स रूप में, ऑफ माइन, अपनी इस इच्छा की साक्षी के रूप में, विटनेस के रूप में, एंड एज माई लास्ट होमेज, और
अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दैट कि ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर राख, बी थ्रोन, उसे प्रवाहित कर दिया जाए, इनटू द गंगा, गंगा में, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, टू बी कैरीड, ताकि वो चली जाए, टू द ग्रेट ओशियन, उस महान सागर में, दैट वॉसेस इंडिया शोर, जो भारत के तटों को धोता है। द मेजर पोर्सन ऑफ माई एसेस, मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर राख, मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर राख, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ, फिर भी मेरी अस्थियों की मेरी अस्थियों के एक बड़े हिस्से को डिस्पोज किया जाए, अदरवाइज एक दूसरे तरीके से डिस्पोज किया जाए, अधिक मतलब दूसरे तरीके से निपटाया जाए। आई वॉन्ट दीज, मैं चाहता हूँ, टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, कि मैं चाहता हूँ कि इन्हें एक एरोप्लेन में रख करके ऊपर ऊंचाई पर हवा में ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड, उसे बिखेर दिया जाए, बिखेरा जाए इन्हें, फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से इन्हें बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स ऑफ, उन खेतों में बिखेर दिया जाए, वेयर, जहाँ, द पीजेंट्स, पीजेंट मीन्स किसान, ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल मीन्स परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, दे माइट मिक्स, ताकि वे मिक्स हो जाएं, कौन मिक्स हो जाएं, उनकी अस्थियों की राख जो हो वो मिक्स हो जाए, विद द डस्ट, उस धूल में, एंड सॉइल, उस मिट्टी में मिक्स हो जाए, ऑफ इंडिया, ताकि उनकी जो अस्थियों की राख है वो भारत की उस धूल और मिट्टी में मिक्स हो जाए जहाँ भारत के किसान कठिन परिश्रम करते हैं, एंड बिकम, बन जाए, एन इनडिस्गाइशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए, इनडिस्टिंगाइशेबल मीन्स होता है इनसेपरेबल, और भारत का वो एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन, मैंने लिखा है, दिस विल एंड टेस्टामेंट, मैंने इस विल, इच्छा, और अपने इस वसीयतनामे को लिखा है, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, 21 जून को, इन द ईयर 1954, 21 जून 1954 को नई दिल्ली में मैंने अपने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामे को लिखा है। सो स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। नाउ जैसे हमें इसे पढ़ने के बाद अब हमें पता होना चाहिए, हमें इससे 3 चीज़ों का बेनिफिट होगा, यानी हमें 3 टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम कर पाएंगे अगर हम इस लेसन को बार बार पढ़ें, तो वीडियो को बार बार देखना और टेक्स्ट को बार बार रीडिंग मारना, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरी, इससे हमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे दूसरी बात, इससे तीसरा जो क्वेश्चन वर्ड मैचिंग टाइप आएगा, और एक चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, मतलब एक पैसेज दिया होता है, उसके नीचे 3 या 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, और सबसे पहले क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है कि इसका टाइटल बताओ, लेखक का नाम बताओ। तो टाइटल में हम लिखते हैं जनरली कि जैसे राइट द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द लेसन, तो द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ द गंगा एंड द राइटर ऑफ द लेसन इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो स्टूडेंट, और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पैसेज की मदद से करने होते हैं। तो इसमें जो टेक्स्ट में आपकी बुक में दिया होगा, तो 1-2 पैसेज का क्वेश्चन करके देखना, और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, मैं उसे बाद में हेल्प करूँगा, मैं उसे बताऊँगा। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, और शेयर करो, और तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन तुम लोगों को ज़रूर मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।